जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू L&T एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल हैप्पी एंड प्रॉस्परस Nuakhai. Guys, Nuakhai is the festival of Odisha. It is the festival of west part of the Odisha. जैसे उड़ीसा का वेस्ट पार्ट है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स बरगढ़, संबलपुर, बलांगीर, तो उस साइड का सबसे बड़ा पर्व होता है नुआखाई। ओके, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन का 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 में, पार्ट 5 मतलब हमारा लेक्चर का पार्ट 5 में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नंबर 1 क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट is appointed by the president on the advice of the options are prime minister, vice president, chief minister, and option D is the CJI, chief justice of India. Again, the governor of a state is appointed by the president on the advice of the who are the following options. Option A, prime minister. Option B, vice president. Option C, chief minister. And option D is the CJI, chief justice of India. And the answer is prime minister. Because you know guys, governor is appointed by the president on the advice of the prime minister. जैसे बोलते हैं ना, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द गवर्नर इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके, तो गवर्नर एक चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट का, जब हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसको हम थोरोली डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। नंबर 2 क्वेश्चन, the president gives his resignation to the dash, means the president gives his resignation to dash. Options are chief justice of India, option B parliament, option C vice president, option D prime minister. It's a beautiful concept. Look, answer is vice president. देखो, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब को देंगे। क्लियर गाइस? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, जब रेजिग्नेशन की बात आता है, जब ओथ की बात आता है ना, प्रेसिडेंट की ओथ कौन लेते हैं ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट। This is a beautiful concept, guys. Never forget. Okay. So the answer for the question number 2 is vice president. Okay, guys. Next, come to the question number 3. Who among the following holds office during the pleasure of the president? तो प्रेसिडेंट की प्लेजर के हिसाब से इनमें से कौन काम करते हैं? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड द आंसर इज द गवर्नर। Yes, because देखो, election commissioner it's a constitutional body. Okay, it's an, yes, he is appointed by the president but not on the pleasure of the president. It's a constitutional body. Speaker of the Lok Sabha, you know when the government has formed the first session, okay, the member of the ruling party, okay, he is elected as the speaker. Then prime minister, you know, he is an elected one. So the answer will be option A, governor. So governor holds the office during the pleasure of the president. Okay guys, next come on to question number 4. Which of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India?
Again, I am repeating the question. Which of the following does not constitute the electoral college for electing the President of India? The options are given. Option A, elected members of Lok Sabha. Option B, elected members of Legislative Assembly of each state. Option C, elected members of Legislative Council. Option D, elected members of Rajya Sabha. Does not, okay, and the answer is elected members of Legislative Council. ओके गाइस, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि उनका जो इलेक्शन होता है ये होता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन. ओके गाइस, तो इनडायरेक्ट फॉर्म इलेक्शन में हम लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं, वोट करने देते हैं, तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है. तो उसमें कौन है, हु आर द मेंबर्स हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस? ना, फर्स्ट नंबर 1, elected members of Lok Sabha, elected members of Rajya Sabha, and the elected members of the State Legislative Assembly, along with दिल्ली एंड पुदुचेरी. दिल्ली एंड पुदुचेरी ये हमारा 2 यूटीज है, यूनियन टेरिटरी. फिर भी तो अब पता होगा दिल्ली और पुदुचेरी में उनका स्टेट असेंबली है, तो उनका जो इलेक्टेड मेंबर होगा दे आर टेकिंग पार्ट. ओके, नाइदर नॉमिनेटेड, ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स कोई इधर टेक पार्ट नहीं करेंगे, उधर इस इलेक्टोरल कॉलेज में वो उनका पोजीशन नहीं है, वो इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते. ओके, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, हु आर वोटिंग टू द प्रेसिडेंट. Yes, first the electoral college consists of the elected members of the Lok Sabha, the elected members of the Rajya Sabha, and the elected members of the State Legislative Assembly with Delhi and Puducherry, because Delhi and Puducherry are the 2 union territories which has the assembly, okay, which is the Legislative Assembly. No nominated candidates have take part in this election. Here Legislative Council, okay, if a state has bicameralism, one is State Legislative Assembly and State Legislative Council. The members of the State Legislative Councils are not elected, they are the nominated members, so they are not getting the opportunity to take part for the presidential election. So our option C is the right answer. Okay guys, next come to the question number 5. हम पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे प्रेसिडेंट बैरन पढ़ेंगे thoroughly. Which of the following appointment is no made by the president of India? मतलब इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किनको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं? चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी करते हैं. स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी चीफ ऑफ द एयरफोर्स. चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स एंड सीजेआई सबको अपॉइंटमेंट करते हैं हमारा राष्ट्रपति महाशय. ऑप्शन बी इसका राइट है. स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं. अब मैं पहले से बोल दिया, जब पहला सेशन बैठता है तो उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है तो उसका एक मेंबर को स्पीकर चुना जाता है, और जो अपोजिशन पार्टी है तो उनका एक मेंबर को डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है. सो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके गाइस, क्लियर? नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, ऑप्शंस, मिसेस इंदिरा गांधी, नो. मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित, नो. मिसेस सरोजिनी नायडू, यस. मिसेस सुचेता कृपलानी, नो. सो ये सबको पता होगा, ये बेसिक चीज है. मिसेस सरोजिनी नायडू, ओके, जो पहले गवर्नर है इंडिया की, फ्री इंडिया की, तो वुमेन, ओके, ये सबको, ये बेसिक चीज है, मैं उसको डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ. ओके, तो ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 30, and the option is 35. Okay, you know what are the basic requirement to contest the election of the president? First must be the citizen of India,
and you must attend at least the age of 35. Okay, not hold any office of profit, and you must be eligible to become a member of a Lok Sabha. So these are the four criteria to become a president or to elect for the post of the president, and the answer is 35 years. Okay guys, clear? Next, come to question number 8. In case of president dies while in office, a vice president can act as a president for option A 1 year, B 3 months, C 6 months, D 2 years. Okay, it's a question of a vacant of the president. So if president unfortunately dies, his office was vacant, so at that time the vice president can act as the president for a period of 6 months, guys, for a period of 6 months. After 6 months, then fresh election will be conducted, okay, by the Chief Election Commission of India or Election Commission of India. Okay guys, it's clear? ओनली 6 मंथ, 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए वो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं, और उनको उसी टाइम में सब कुछ मिलेगा, प्रेसिडेंट की सैलरी, उनका एम्यूलमेंट्स, उनका सब कुछ मिलेगा. ओके, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट्स ऑफ. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ऑप्शन बी cabinet ministers and chief minister of the state. Option C prime minister. Option D cabinet ministers. Listen guys, the council of, देखो council of ministers स्टेट का हो सकता है और सेंटर का हो सकता है. अगर हम बात करेंगे सेंटर का, तो सेंटर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 3 टाइप्स का है. एक है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स. सेम चीज स्टेट का भी होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. सेंटर में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. दैट्स इट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके गाइस, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Who administers the oath of the office to the president of India before he enters upon the office? Already I have discussed. Okay, तो सी जे आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट साहब की वो मतलब ऑफिस को एंट्री करने से पहले उनका जो ओथ एंड एफर्मेशन होता है वो लेते हैं, सी जे लेते हैं, और सी जे का भी प्रेसिडेंट लेते हैं. दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन क्वेश्चन नंबर 11. ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मच मंथ? ऑप्शन ए 9 months, option B 3 months, option C 12 months, option D 6 months, and the answer is 6 months. Guys listen, इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद सपोज X is a party who got majority, means magic number 272 plus in Lok Sabha, means that party formed the government and the head of this party, okay, the president of this party become the prime minister. तो ऐसा सिस्टम है जो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो उनका कोई फ्रेंड्स है, उनका कोई कलीग है, नाइदर वो लोकसभा का मेंबर है न वो राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी अगर वो राष्ट्रपति साहब को रेकमेंड करेंगे तो उनको अपना कैबिनेट में पोजीशन देने के लिए दे सकते हैं, कर सकते हैं. दिस द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो जिनको मिनिस्टर पद मिला तो उन्हें 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आइदर लोकसभा और राज्यसभा में एक सीट उनको जीतना चाहिए. अगर लोकसभा में उनको कंटेस्ट करना है तो कहीं पे इलेक्शन होगा, उनको वो सीट को विन करना है, और राज्यसभा में वो कोई भी स्टेट से वो उनको नॉमिनेट करके फिर उनको राज्यसभा में मेंबर कर सकते हैं. अगर वो नहीं हुआ 6 महीने के अंदर तो उनका पोजीशन जा सकता है. ओके, दिस इज क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 12. वन फीचर डिस्टिंग्विश आरएस लोकसभा फ्रॉम द विधानसभा. विधान परिषद क्या है? तो राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है? एक डिस्टिंक्शन क्या है? ऑप्शन है पावर ऑफ इम्पीचमेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स, टेनर ऑफ मेंबरशिप. बी सी डी ये कॉमन है, उनमें से इनडायरेक्ट होता है, राज्यसभा में होता है इंडायरेक्ट इलेक्शन, और विधान परिषद में होता है इंडायरेक्ट इलेक्शन. नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा में, और विधान परिषद में
गवर्नर सेव करते हैं। टेनर ऑफ मेंबरशिप सेम है, 6 years, पर पावर ऑफ द इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट साहब का इम्पीचमेंट होता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस का इम्पीचमेंट होता है, तो उस टाइम राज्यसभा हैज द पावर। ओके, तो राज्यसभा के पास पावर होता है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। वो पावर नॉमिनेशन, सॉरी वो पावर हमारा किसके पास नहीं है, ये हमारा ये विधान परिषद के पास नहीं। ओके गाइस, वो पावर विधान परिषद के पास नहीं है। ओके गाइस, क्लियर। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द, यस, तो ऑल स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर किसका है, प्लानिंग कमीशन का, ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का, ना इंटर स्टेट काउंसिल का, ना फाइनेंस कमीशन का। एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंटर स्टेट काउंसिल का वो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ओके गाइस, देन क्वेश्चन 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी ऑफ इंडिया। जैसे कॉन्टीजेंसी फंड होता है, पब्लिक मनी ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, इस तरह होता है। तो उन किसका पावर है, फाइनल राइट है जो सैंक्शन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट का, कौन है वो? ऑप्शन है स्पीकर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी पार्लियामेंट। वो ऑप्शन है प्रेसिडेंट साहब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ इम्पीचमेंट है, जैसे इफ ही इज incapable for his duty, for conducting his duty, or he is mentally not fit for his position, or he is bankrupt, etc., if misbehavior, okay, then at that condition impeachment process can be carried out. So who can initiate? Option A, either house of the parliament, means both lok sabha and rajya sabha. ऑप्शन बी, एनी विधानसभा, वो तो कभी नहीं होगा, विधानसभा नहीं होगा, पहले से बोल चुका हूं, ओनली लोकसभा और राज्यसभा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस होने से चलेगा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा शुरू होता है, लोकसभा से अगर शुरू होगा तो आपका 100 एमपी का साइन चाहिए, और राज्यसभा तब होगा तो राज्यसभा में 50 एमपी का सिग्नेचर होना चाहिए वो रेजोल्यूशन पेपर में, जो राष्ट्रपति के अगेंस्ट इम्पीचमेंट हो रहा है, उस रेजोल्यूशन में 100 मेंबर्स एंड 50 मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आंसर होगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कुछ भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। तो गाइस, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है, तो इनमें से मैंने पहले राज्यसभा का मेंबर थे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इनमें से कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके गाइस, देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। गवर्नर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स, सेम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 35 ईयर्स। देन क्वेश्चन 18, चीफ मिनिस्टर ऑफ a state is responsible to, chief minister is a state, chief minister of a state is responsible to, option A prime minister, option B राज्यसभा, option C legislative assembly, option D governor। obviously it's legislative assembly। प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर और एनी काउंसिल मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, बट the chief minister of a state is responsible for the legislative assembly of that state। Okay guys, clear? Then come to the question 19, how many times the president of India can seek re-election to his post। देखो ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो भारत में, हमारा देश भारत में एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, होने के लिए वो कितना बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं? ऑप्शन ए वंस, एक ही बार, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ऑप्शन सी 2 टाइम्स, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इंडिया जो होता है दोस्तों, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हम यूएसए की बात करेंगे उसमें क्या क्या आंसर है? 2 टाइम्स। ओके, जैसे बाराक ओबामा जी हुए थे 2 टाइम्स, तो पर इंडिया में से सेकेंड टाइम कोई नहीं हुआ है, फिर भी प्रोविजन है ही कैन
re-elect. Okay, he can contest the election, he or she can contest the election, guys. So answer will be any of time. Okay, any number of time. Then question number 20. Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? Within the Union of India, भारत देश के अंदर किनका पावर है वो चाहे तो नया स्टेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट. एंड द आंसर इज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट शायद कर सकते हैं फॉर ऑन दी एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर. उनका प्रोसीड्यूर होता है, वो प्रोसीड्यूर पहले फुलफिल होगा. ओके, सिंपल मेजोरिटी में बोथ लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, फिर वो स्टेट को जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए. तो वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसीड्यूर फुलफिल होने के बाद तो प्रेसिडेंट साहब जो न्यू स्टेट कर सकते हैं. ओके, 21. हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट जो मीटिंग होता है उनमें से कौन मीटिंग में अटेंड करते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन डी डेप्यूटी मिनिस्टर्स. नो, ये जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है. जब कैबिनेट मीटिंग होता है तो कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही उसमें अटेंड कर सकते हैं. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी. ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स. Then 22 question number 22. Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulations fixing the number of members of UPSC? इसका ये मतलब है यूपीएससी का जो मेंबर होते हैं, ओके, यूपीएससी के मेंबर जैसे मिनिमम 2 से 9 और 11 होते हैं, तो ये फिक्स कौन करते हैं? ओके, ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी कैबिनेट मिनिस्टर. एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट साहब का पावर है, वो प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं. नंबर 23 देखिए, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356, 360. 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, एंड 360 इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो ये जो 354 आर्टिकल की तरह इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट किनका एडवाइस पर? ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड आंसर इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से वो क्या करेंगे? इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे. नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352. नेशनल इमरजेंसी हम बहुत जल्द आ रहे हैं हमारा लेक्चर में, हम उसको पढ़ेंगे. ओके, इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें प्रेसिडेंट से वो क्या आते हैं. ओके, तो उसको हम पढ़ेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे. तो बस आज का एमसीक्यू के लिए इतना ही काफी होता है. ओके, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन. The Union Council of Ministers is collectively responsible to, yes पहले से बोल सकूं, the Union Council of Ministers are collectively responsible to House of the People means लोक सभा. ओके, that I have already discussed. और आज का सेशन का सबसे लास्ट अंत है ये हमारा क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन. Who is the ex officio chairman of the Council of States? Okay guys, Council of States means राज्यसभा. Okay, Council of Minister, sorry, House of the People means Lok Sabha. Okay, House of the People means Lok Sabha, and the Council of State means the राज्यसभा. तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है आपको पता है? वाइस प्रेसिडेंट साहब. ओके, तो ये हमारा आज का सेशन. तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का. ओके गाइस, आशा करता हूँ ये वाला लेक्चर आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. प्लीज़ आप इसको फास्ट लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए. अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन का डाउट्स है, हमारा कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, उस पर कमेंट डाल सकते हैं. और आपको क्या चाहिए, आपका लाइकिंग सब्जेक्ट क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं. हम उसको आप लोग के लिए लेक्चर बनाएंगे और आप लोग को वो लेक्चर हम पढ़ाएंगे. ओके गाइस, तब तक के लिए लास्ट में एक चीज बोलता हूं, प्लीज लाइक आवर इनिशिएशन, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. थैंक यू.
जय हिंद।